Hi, good afternoon everyone. I would like to welcome you all on behalf of Priyadarshini College of Engineering. So my name is Aishwarya and my startup is Sow2Grow. It's SOWTOGROW. So it's around 12 million of the paper waste is generated every year in India, and only 3 tons million is being recycled. So remaining 3/4 of the waste is still in our country, which is the major issue. That is the the solid waste generated in our country. So our product, which is made from the paper waste, we make a paste of the paper and a lot of paper waste that are currently present in our country. And in this product, we are using only the newspaper waste. And so whenever we go to a birthday party, we have come across that we use paper plates. And if we have closely observed that the paper plates, they have a covering of plastic which is not at all biodegradable and which is a harm on its disposal. But our paper plates, they are 100% biodegradable and they are made up of paper, and they are also on its disposal. This will lead to a magic, and that magic is that when we are sowing it, when we are just dumping it, this on just using 3 factors: soil, water and sunlight, this will lead to the plants, and these are the plants that will then help to make India a more greener space. So our product solves 2 problems. That is, it solves the management of the solid waste, and also leads to the so many growth of the so many plants, which is contributing towards making India a more greener nation. Thank you. Okay, nice. Hello Smitesh. Hello everyone. My name is Smitesh from Aerovinia Private Limited. So you all knows the relation of India with China. So okay, still we are using most of the Chinese product like carbon composite, carbon fiber and all. So we are just trying to pull the China from the India out. So we are trying to replace the carbon fiber from the market. We manufacture our own composite material, which is called as hybrid composite material, which is lightweight as the carbon fiber and cost less than 60% than the carbon fiber. We can manufacture any kind of drone. This is our quadcopter frame, which is able to hold the weight of up to 10 kg static load, and this is our hexacopter frame. This is made up for the agricultural drone, which can carry up to 15 kg of fertilizers within a 1 run and can spray the agricultural land of 1 acre within 7 to 8 minutes. Aerovinia is also in a design solutions domain and also in a 3D printing domain. We print all our products 3D printed in all inbuilt facilities, inbuilt designing facilities, manufacturing facilities and printing facilities. So if you want if you are really interested in a drone like of field, so please visit us in a incubation center of Priyadarshini College of Engineering, Nagpur. Thank you. Moving to the further presentation, I want to just clarify that most of the businesses in India are facing the problem of the supply chain, and the major problem in the supply chain is the traceability and the transparent solution between any of the concerns and the peer between them. So what if there is an existing of system that every product has its own QR code with a unique ID, so that after the scanning of the just QR code we can get all the information of like manufacturing date, date of origin and like all of the information. So here is my supply chain supply hub comes in a role. Here is the example. So basically it creates some accounts like that, and we already created some account of manufacturer distributor. So it's account for the basically for the consumer or retailer. You can just scan the QR code, like any of the QR code, and it all shows the information like where it's manufactured, what is the origin, and with all the location. As long as we take the location by the device location only, the temperature of the any kind of hacking and like it's not be possible. And this whole system is made of a Ethereum blockchain, so it is completely impossible to hacking or tamper the data. So by this we can reduce the paperwork at 20 to 50%, and it can reduce the counterfeiting by 60%. And counterfeiting is a major issue that we face during supply chain of any business. Thank you so much. So हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग द साइंस हियर इन द इंडियन साइंस कांग्रेस. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं
और वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शोकेस कर रही हैं। तो हम लोग अपने कॉलेज की तरफ से हैं, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्लस आई हैव माय ओन स्टार्टअप नेम्ड एज एरोवेनिया प्राइवेट लिमिटेड। सो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी जितने भी ड्रोन इंडस्ट्री में ड्रोन्स हैं सारे के सारे मेड इन चाइना हैं। सो वी आर मेकिंग इन टोटल इन हाउस ड्रोन इन आर कंपनी। सो बेसिकली हम लोग हमने अभी तक ड्रोन का जो फ्रेम है वो डेवलप कर लिया है। सो दिस इज़ द ड्रोन, दिस इज़ द फ्रेम ऑफ द ड्रोन विच इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल एंड जो कि लाइट वेट भी है प्लस टोटली मेड इन इंडिया, 100% मेड इन इंडिया। प्लस इसके साथ साथ हमारा रिसर्च जो है वो फ्लाइट कंट्रोलर से भी चल रहा है, प्लस इसके जो मोटर्स होते हैं वो भी हम लोग इन हाउस बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पर हमारा रिसर्च चल रहा है एंड आई होप सून हम लोग अपना एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि अच्छे मार्केट में चले। बस वी आर वर्किंग ऑन EV स्टार्टअप। जैसे कि आप जानते होंगे मार्केट में इस वक्त काफ़ी महंगी EVs आती है, लाइक 1 लाख की 1,30,000 मीटर, बट उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं होती है। बट वी कैन मैन्युफैक्चर आर EV इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसकी क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल रहेंगी और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी काफ़ी अच्छी होंगी इसकी। तो हम हमारी जो EV है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में देंगे और इसके कंपेयर में जो अदर्स EV है उनके कंपेयर में काफ़ी अच्छी बाइक रहेंगी है। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है, कॉन्सेप्ट मॉडल है, ये वर्किंग में है, लेकिन ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। इसके बाद जो MVP होने वाला है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होने वाला है जो कि मार्केट में लॉन्च होगा जल्दी है। स्मार्ट सबस्टेशन है जहाँ पे सर हमने कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो बहुत ही पहले हमने आगे प्रायोरिटी दी उनको। तो सर पहला प्रायोरिटी है ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग, सेकेंड है स्मार्ट कंट्रोलिंग और थर्ड है ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सर ट्रांसफार्मर के ऊपर 2 से 3 फॉल्ट मतलब मेजरली हैपन होते हैं। एक टेम्परेचर राइज होता है, एक अंडर वोल्टेज होता है और एक ओवर करंट फॉल्ट हो जाता है। तो सर बेसिकली हमने 2 लाइन्स का यहाँ पे दिखाया है। एक पहली लाइन जो है सर वो है लाइन, उसके ऊपर करंट फॉल्ट है, और जो ये लाइन है सर उसके ऊपर अंडर वोल्टेज फॉल्ट हमने रिप्रेजेंट करा है। तो सर पहले कैसा है कि ऊपर जो है हमने ACBs रखे, मतलब एयर ब्रेक स्विच रखे हमने, वो जो घर पे ही बनाए थे। तो सर नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है कि अपना जो लोड है, नॉर्मल कंडीशन में सर अपना लोड जो है ना वो सर चलते रहता है, उसको सप्लाई मिलते ही रहता है। पर जैसे सर अपना लोड बढ़ जाता है ऐसा अपना करंट भी बढ़ जाता है, तो ओवर करंट फॉल्ट हो जाता है। तो सर जैसा लोड बढ़ जाता है तो आप यहाँ पे देखिए अपना सिस्टम ओपन हो जाएगा सर। ओके। और सर सेकंड जो फॉल्ट है सर वो उसमें कैसे कि अंडर वोल्टेज फॉल्ट है। तो सर हम अंडर वोल्टेज फॉल्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो सर यहाँ पे फॉल्ट अगर हो जाएगा और अपने ब्रेक स्विच ब्रेक हो जाएंगे तो सप्लाई पूरा कट हो जाएगा। सर यहाँ पे भी हमको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज फॉल्ट हो गया तो ग्रीन का रेड हो गया, यहाँ पे भी करंट फॉल्ट हो गया तो ग्रीन का रेड हो गया। तो सर जब हम फॉल्ट पूरा रिपेयर करते हैं, फॉल्ट जब हम पूरा रिपेयर करते हैं यहाँ पे सर फॉल्ट दिखता नहीं है स्काडा पे, और फिर हम लाइन वापस सर क्लोज कर सकते हैं। तो सर लाइन क्लोज हो गई है, सप्लाई जा रहा है अभी। ओके। और सर यहाँ पे ओवर करंट के फॉल्ट को भी अगर हम क्लोज करेंगे बाद में, लोड कम कर दिया, क्लोज करेंगे तो सर उसको सप्लाई जा रहा है ऐसा। ओके, मतलब ये कौन से माइक्रो कंट्रोलर पे बना है कि नहीं सर हमने PLC स्काडा यूज़ किया था सर उसमें। तो सर स्काडा सिस्टम जो रहता है वो लैपटॉप पे रहता है, मतलब कंट्रोलर रूम में रहता है, और जो PLC रहता है सर वो फील्ड में रहता है। PLC इज़ अ वेरी रिलायबल डिवाइस जो बारिश से हीट से ख़राब नहीं होता। आप उसको जला भी दोगे स्टिल द प्रोग्राम विल बी इन इट एंड स्टिल इट विल बी वर्किंग। तो ये बहुत रिलायबल डिवाइस है। और सर फील्ड में तो PLC काम आएगा क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के साथ उसमें फॉल्ट्स या फिर एरर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने PLC यूज़ किया था उसमें। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये मतलब आर्डिनो से महंगा आता है? हाँ सर आर्डिनो से महंगा आता है, पर तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे PLC यूज़ करते हैं क्योंकि उनको कैसा चाहिए कि रिलायबिलिटी चाहिए, प्रोलॉन्ग रहना चाहिए, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए। और सर एरर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब छोटी भी रही ना स्टिल एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो सर इसमें वो एरर होना मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 में से एक बार होता है ऐसा, अगर हो भी गया तो। इसका सर प्रोग्रामिंग भी बहुत सिंपल है, आर्डिनो जैसा कोड लिखना नहीं पड़ता, बस एक लैडर डायग्राम रहती है, उसमें एक कंपोनेंट इंसर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ओके। तो लोगों को वो ईजी पड़ता है, इसलिए सर लोग PLC के पीछे ही अभी जाते हैं, भले ही वो महंगा रहेगा, मगर आजकल लोग क्या करते हैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के पीछे भागते हैं। सर PLC इज़ अ क्वालिटेड प्रोडक्ट फॉर मी, तो दैट्स वाई आई मेड दिस सेकेंड प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। पहला मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर ही हो चुका है जो मेरे को महाडिस्कॉम ने स्पॉन्सर किया था, तो ये सेकेंड मेरा प्रोजेक्ट है सर।
अपना MCB वगैरह है तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ सर, मतलब ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना सर, ये ऑलरेडी सबस्टेशन में रहते हैं, बट इनको सर कंट्रोल करने के लिए आदमी को जाना पड़ता है। आदमी जब स्विच पुल करेगा तभी आइसोलेटर ओपन होगा। तो अगर सर कैसा रहता है कि अगर यहाँ पे अभी ये तो कम वोल्टेज पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होती, पर वहाँ पे तो 33 kV 11 kV ऐसा चलता है। तो सर स्पार्क है ना जो, वो नीचे भी आ सकता है, क्योंकि उसको एक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ चाहिए अर्थ में जाने के लिए। तो वो क्या करता है, कभी कभी ऊपर से डायरेक्ट नीचे आता है, और अगर नीचे आदमी प्रेजेंट है तो उसका डेथ भी हो सकता है सर। या फिर कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बाजू में रखे हुए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, तो अगर उसके ऊपर स्पार्किंग हो गया तो पूरा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो सर हमने ये सिस्टम ही पूरी हटा दी है कि आदमी को जाना ही नहीं पड़ेगा। उसको कब जाना पड़ेगा, जब अगर मेंटेनेंस उसको करना है। तो मेंटेनेंस के लिए भी सर हमने एक स्विच यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यहाँ पे बस एक क्लिक कर देना ऐसा मेंटेनेंस के लिए, और सर लाइन ओपन हो जाएगी। उसके बाद सर टेम्परेचर राइज एक हमने फॉल्ट रखा था, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ गया, स्टिल आदमी को जाना नहीं है। उसको बस क्या करना है, यहाँ से अपना अगर उसको इंडिकेशन आ गया टेम्परेचर राइज हो चुका है अपना ट्रांसफार्मर का, वो क्या करेगा, यहाँ से मेंटेनेंस स्विच दबा देगा, लाइन ओपन हो जाएगी। फिर आदमी जाएगा, देखेगा ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो गया है क्या, सब सही तो चल रहा है। अगर आने के बाद अगर उसको सब ठीक लगा तो वो रिक्लोज कर देगा, सिस्टम वहाँ पे चालू हो जाएगी। और सर हमारी फॉल्ट है कि आग लग गई तो स्मोक से पता चलेगा अपने को। तो हमने एक सर स्मोक सेंसर यूज़ किया है यहाँ पे, आग लगने के बाद स्मोक अगर आ गया उसने डिटेक्ट कर दिया तो वहाँ पे दिखा देगा। और अगर रात में आग लग गई और सुपरवाइजर ही सबस्टेशन में प्रेजेंट नहीं है तो वो उसे घर से भी फ़ोन से कंट्रोल कर सकता है, इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा देगा, पूरा सिस्टम ओपन हो जाएगा, सबस्टेशन बंद, और जो मैसेज है वो जो अपने कंज्यूमर से उनको चले जाएगा कि आग लग गई थी तो ये बंद हो गया। ओके, सो ये पूरा वायर कनेक्टेड है फिर वाईफाई से भी हो सकता है? और सर ये वायर कनेक्टेड है। बेसिकली PLC को इंटरफेस करने के लिए हमको वायर से ही जाना पड़ता है, बट अभी लोग ये बोलते हैं कि सबस्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो इतनी लंबी वायर कैसे डालेंगे। उसके लिए भी एक सोल्यूशन है सर, जैसे अपने मोबाइल टॉवर्स रहते हैं उसके ऊपर एक RF मॉडेम रहता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम, जो अपने को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेटवर्क आपको फ़ोन पे आता है तो वायरलेसली आता है। तो सर हम उस पर क्या कर सकते हैं, वो RF मॉडेम में अपना PLC का इनपुट दे सकते हैं। तो वो जितना एरिया क्रॉस करता है ना, तो एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर हम लगा सकते हैं। तो ट्रांसमीटर अपना पोल पे आ जाएगा और रिसीवर जो है अपना वो अपने मोबाइल नेटवर्क पे आ जाएगा, तो उसमें से अपने को नेटवर्किंग मिल सकता है। ओके, तो उसमें कुछ इश्यूज नहीं हैं कि मतलब एरर्स के इश्यूज आते हैं ना? हाँ, वायर के साथ एकदम रिलायबल रहता है 100% बराबर, लेकिन अगर वायरलेस होगा उसमें इश्यूज आ सकते हैं। सर देखो अभी कैसा रहता है कि ये तो मैंने बता दी बात कि अगर किसी को वायरलेस ही चाहिए रहेगा तो हाँ, बेसिकली लोग क्या करते हैं कि वायर्ड ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कैसा रहता है सर कि वोल्टेज बहुत हाई रहता है तो लोग रिस्क नहीं लेते, और जो एंड कंज्यूमर्स है वो भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि दे विल आल्सो क्वेश्चंस फॉर टू अस, तो लोग क्या कहते हैं वायर्ड प्रेफर करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि सबस्टेशन रहता है तो सबस्टेशन के बाजू में एक कंट्रोल रूम रहता है, तो उतनी जो वायर रहती है तो अगर मैक्स टू मैक्स जाके बस 1 किलोमीटर की वायर अपने को यूज़ पड़ेगी, तो दैट विल बी वेरी अफोर्डेबल फॉर द गवर्नमेंट या फिर किसी इंडस्ट्रियल के लिए। तो उतना सर हम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये रिमोटली ऑपरेटेड? This is a remotely operated vehicle. This is a surveillance robot. So it has got day-night cameras on board. So it can climb stairs, go in all terrain of operations. So if you want to send it inside a building to find out the hideouts of terrorists, mainly for counter-insurgency and counter-terrorist operations, the soldier can carry this robot in his backpack and drop it outside the building, and he can operate it from 200-meter line of sight using a small handled kind of control station. So all these camera feeds are transmitted in real time. So as you can see there. So this is the control station. Now this is not for this robot, this is for the other one. So this is the control station for CSROV, that is the confined space ROV. This one is smaller. Somebody has kept it inside. This is a small handled control station. And this can do one more thing. It has got some kind of flat cameras on board. So where what happens is if somebody has fixed or put some explosive beneath the car or maybe truck, so it can do belly scanning. So you send it inside, it will do the scanning and give you the output, whether there is a bomb or explosive kind of material there. Then it has got some charge also
on top of it. So you can drop the charge in a place where you want to do that type of detonation, and you can carry 400 grams of TNT. You drop it there, come back, and then destroy the whole thing. Okay. So can it defuse the bomb which is available? See, this has got option of diffusing a bomb with a water jet disruptor. So there is a fan tilt unit on top of it, and water jet disruptor will be mounted. So using that you can destroy the IEDs. But this is for small IEDs. But if you want to destroy bigger IEDs like 8 kg, 20 kg, then we go for this type of vehicle. So this is known as confined space ROV, which is mainly designed for confined spaces like aircraft, inside aircraft or inside railway. So if there is a baggage found inside an aircraft, on the cabin baggage, or maybe on the berth of railway compartment, you can send this vehicle and operate it from outside. This vehicle will go take out the bag and keep it safely, or it can destroy the IED electronics part in situ also, there itself, using a water jet disruptor. It has got a water jet disruptor on board, तो उससे आप उसको fire कर लो, which works almost like a bullet, but spark free detonation. It can destroy the vehicle. इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी दोनों की रेंज अभी तो 200 मीटर है, because you are 200 meter is safe for this type of blast, 8 kg and all. But if the bomb is bigger, then like UXOR, which is kept outside, outside you can see on more big robot is there. For that the safe distance is 2 kilometers, so there the range is 2 kilometers. So it depends on the type of IED you are handling, what is the safe distance, and then we decide on the RFU, like what should be the distance you go for. एनिमी अटैक करता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, एनिमी अटैक करेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, दिस इज द लाइट वेट रिमोट, तो इसमें आर्मर्ड प्रोटेक्शन तो है नहीं. अगर एनिमी ने अटैक किया तो किया, यू कैन नॉट हेल्प, आप कुछ कर नहीं सकते हो. बट लो कॉस्ट है, वो है, यू आर सेविंग अ सोल्जर. दिस इज जस्ट अ आई फॉर अ सोल्जर. इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ सोल्जर इनसाइड, यू आर सेंडिंग दिस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जो भी पहले जाता है उस पर अटैक होता है, सो यू सेंड दिस, एंड दिस इज साइलेंट ऑपरेशन. So if it goes inside, at least it will give you some output of that place. So that is how you will know that there are how many people, or what is the scenario, what is the path to go about, because it is giving you real-time video transmission. Wherever it is going, it is sending you the real-time video. So that's how it works. That's nice. और उसकी कॉस्टिंग Cost is a different aspect of it, because we are the designers, so we really don't deal with the cost. But cost depends, because these are all mill-grade components. अगर आप देखोगे ना, ये जो connectors हैं, these are also mill-grade. You have heard about IP, ingress protection, पता है? So IP नहीं पता है. So IP is like how much water it can withstand, how much dust it can withstand. So if you have to go for IP rating, then component cost बढ़ जाएगा. Okay, IP rating. Okay. IP rating, okay. Then temperature rating, water resistant, dust resistant. Then temperature rating. This has to work from -20 to +55. तो सारे components हमें ऐसे चूज़ करने पड़ते हैं, cost तो बढ़ता ही है. So cost is, as I said, it's and for defense really cost doesn't matter much. For them durability and operability is more. And these are all indigenous things. So maintainability is always good. It is in-house designed by DRDO. So does all the equipments around here, do they have self-destructing mode or what? See, self-destructing, we could have kept it here, but we didn't keep, because it's actually not required. The code which is inside, that is encrypted. The protocol which we are working on, that is again our own protocol, encrypted protocol. So even if somebody gets it, you won't be able to crack it. Because that is the software is the heart of it. Electronics में क्या समझेगा, उसको कुछ नहीं समझेगा कार्ड में. So but software he won't be able to crack. So that's why we had not kept any self-destructing properties. Thank you. So यहाँ पे जो जिस स्केल मतलब एक्चुअल में इतने बड़ा रहता है, ये एक्चुअली मैं चलाना चाहती थी, but I didn't get permission. Otherwise हम इसको चला भी सकते हैं. This is the one. This is the size. There is a flipper. यहाँ पे देख सकते हो ना. You can climb stairs. So ये flipper पे आपसे आप stairs पे climb कर सकते हो. Slopes कर सकते हो. अपसाइड डाउन हो गया तो उसमें भी सेल्फ वो एक प्रोग्राम है. सो विद दिस हेल्प ऑफ द फ्लिपर्स ना, ये आप पलट सकते हैं. सब कुछ चीज़ें ध्यान रखा गया. हाँ. थैंक यू. ओके, वेलकम.